Yeah. We will see the two very important concepts in real number system, that is intervals and neighborhood. What we will do is all the concepts will be explained to you. Do not copy the notes right now. I will be converted into a PDF file and share it on Google Classroom today itself, so that later on you can write down the notes. These are all, very elementary things. I'm giving you the definitions and some remarks, that's all. And of course, I'm explaining the things also. So when you say an interval, now the definition goes like this. Let me use the pencil so that you can focus on what I'm writing. Change the color. Okay. So given any real numbers, say A and B, the open interval is defined as a set X in R such that, you know how to read this slash, such that A less than X less than B. Okay, so remember there is a strictly less than sign over here. And the notation for open interval is you have the open brackets and inside that you have A comma B. Okay, so that is our open interval. How do we read it? This is read as open interval A to B. Open interval A to B. This is how we read it. Write it as round bracket, inside you have A comma B, and the definition is all those real numbers which lie between A and B, but A and B को नहीं लेना है because it is strictly less than. Correct? Whereas if you look at the closed interval definition, so now closed interval from A to B, then the closed bracket is used, A comma B, and all those real numbers such that A is less than or equal to X is less than or equal to B. So इधर ये जो बाउंड्री के पॉइंट्स है A और B, वो भी उसमें इंक्लूड हो गए. ओके, अभी अगर मैं समझो डायग्राम निकालती हूँ रियल नंबर लाइन का, तो ये A है मेरा और ये यहाँ पे B है, तो ये सब बीच वाले पॉइंट्स आएंगे, लेकिन सर्कल किया मतलब वो नहीं आएगा, A और B इसमें नहीं आएगा. करेक्ट? और जब क्लोज्ड इंटरवल होता है तो यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, तो ये सब बीच वाले पॉइंट्स भी आएंगे और ये दोनों भी आएंगे. तो मैं इसको क्लोज ब्रैकेट डाल देती हूँ, यानी A से लेके B तक सब आ जाएंगे. ओके, नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल्स. तो जैसे कि नाम है सेमी, मतलब एक तरफ राउंड ब्रैकेट एक तरफ क्लोज ब्रैकेट रहेगा. So if you have this round bracket A comma B close bracket, then जिधर राउंड ब्रैकेट होता है ना वो वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं होता है, तो उधर स्ट्रिक्टली लेस देन. And where you have the close bracket, that end point is included, so you have less than or equal to here. Okay. Similarly, you have A comma B closed interval from A and open from B is all the real numbers such that A is less than or equal to X is strictly less than B. देखो राउंड ब्रैकेट जिधर है उधर मैंने उस पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया है. अंडरस्टूड? नाउ सपोज यू हैव इंफिनिटी, then with infinity we have semi infinite intervals and then they are defined as follows. Yeah, so ये देखो मैं डायग्राम निकालूंगी तो लिहून नका घेऊ. Are you writing? Don't write. Yes, ma'am. No, don't write it. You just remember, understand it.
It's just notation and simple definitions. Okay. Now here I will draw the figures for each one. थोड़ा सा dark figure करते हैं. Okay, so that the things will be quickly clear to everybody. Now A is some real number. So this is my real number line. ये है मेरा A. So if I take all the real numbers to the left of A, मतलब A को छोड़ दो, इसको निकाल दो और उसके लेफ्ट में सब नंबर्स ले लो, तो ये सब आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे. कहाँ तक जाती है वो रियल नंबर लाइन लेफ्ट हैंड साइड में? So it goes up to minus infinity. And that is why that particular interval is minus infinity comma A. I have not included A, so round bracket. So it is the set of all real numbers such that x is strictly less than A. आपको पता है कि less than जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है, जो छोटा नंबर है वो लेफ्ट में होता है. सो A के लेफ्ट के सब नंबर्स. If I include A, then the square bracket would come. The sign would be x is less than or equal to A, and A would be included in this. So A को include करते हैं और ये सब numbers लेते हैं. तो इसका लेफ्ट हैंड साइड का बाउंड्री कौन है? इट इज माइनस इंफिनिटी. And minus infinity and plus infinity are not actually real numbers, they are the symbols. तो इसलिए उनको कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा उस तरफ, राउंड ब्रैकेट ही आएगा उधर. ओके. सिमिलरली यहाँ अभी दोनों डायग्राम में आई हैव टेकन लेफ्ट हैंड साइड. इफ आई टेक द राइट हैंड साइड तो रियल नंबर ए से बड़ा होगा, तो ये डायग्राम ऐसे आएगी. ये ए है और ए को मैं छोड़ रही हूँ और सब राइट हैंड साइड ले रही हूँ. तो दीज आर ऑल रियल नंबर्स. ये जो zigzag लाइन किया है ना, ये सब रियल नंबर्स है विच आर ग्रेटर देन ए. सो x इज ग्रेटर देन ए एंड देन it is open from A and you are going up to infinity. So both side open interval A comma infinity. And obviously the next where I include A here, x is greater than or equal to A में A की तरफ से closed हो जाएगा. तो इसका डायग्राम भी very obviously ऐसा आएगा. ये मेरा A है, उसको मैंने include किया और इस तरफ सब points आ गए. Clear? So this is how semi-infinite intervals can be defined. I'm giving notes and even the diagram will also be there in the notes. Now you have some remarks, very important remarks. Just note them down. Sorry, note them down means don't write it, understand it. लिखने का काम अभी आप नहीं कर रहे हो. अभी these are the semi-open or semi-closed intervals. So how one can represent them in terms of the closed interval. तो देखो ये open interval from A and closed interval from B में आप अगर लेते हो पूरा closed interval AB, तो इसमें से कौन सा पॉइंट निकालना है? A की तरफ से ओपन है तो उसमें से A निकाल दो. Okay, so this is how one can represent the semi-open interval in terms of closed interval. यहाँ से ये साइन पता है ना सबको? It is like this. थोड़ा slanting subtraction वाला साइन है. इसका मतलब है you are removing A from the closed interval AB. And if you remove B from the closed interval AB, तो B को निकाल दिया मतलब B की तरफ से ब्रैकेट कौन हो गया? राउंड हो गया. So B is not included. Okay. Now in all the above diagrams we had taken A on the left hand side, मतलब A छोटा था और B बड़ा था. In case your A is greater than B, then each of these intervals is empty. ऐसा उल्टा इंटरवल नहीं रहता है कभी भी. 4,3 ऐसा इंटरवल कभी भी नहीं रहेगा. आप उल्टी डायरेक्शन में नहीं जाते हो. पॉइंट से सिर्फ राइट साइड जाते हो आप. जो डायरेक्शन है वो राइट साइड होता है. इसलिए इफ A is greater than B, then each of these intervals is empty. And if A is equal to B, तो क्या रहेगा? मतलब आप उसी जगह पे हो, हिल नहीं रहे हो. You are at the same point. So the closed interval would be that point itself. उसको A कहो या B कहो, वही point रहेगा इधर. This is the closed interval. और open interval में क्या आएगा?
कुछ भी नहीं आएगा, मतलब एम्प्टी सेट आएगा when you are at the same point a is equal to b. And as we have seen in all the above diagrams, if a is less than b, then all these intervals are non-empty. कोई भी इंटरवल ले लो, सेमी ओपन ले लो, सेमी क्लोज्ड, ओपन क्लोज्ड, कोई भी इंटरवल ले लो, they will be all non-empty sets. Now the real number line जो R है हमारा, या set of real numbers, can be considered as the doubly infinite interval. मतलब ये जो लंबी लाइन है मेरी, ये लेफ्ट में मैं समझ सकती हूँ कि माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होती है और राइट में कहाँ तक जाती है, तो इंफिनिटी तक जाती है. तो ये ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी. One can write R as an open interval minus infinity to infinity. Okay. So these are the different intervals we have seen. Now, how do you define the interval? Set और interval में क्या फर्क है? Let us see the definition of an interval. A general interval, I am saying. Now, I is some subset of R. ये क्या है? I is a subset of R. We say that I is an interval if you take any 2 points in that interval such that A is less than B. Okay, A B ले लो, A B से छोटा है. And if you consider the closed interval A to B, इसको कैसे पढ़ते हैं? इसको, it is a closed interval A to B. Then it is entirely contained in I. मतलब आप सेट के बाहर नहीं जा रहे हो, वो पूरा क्लोज्ड इंटरवल I के अंदर है. बराबर? This is one way of defining an interval. Other way is A and B ले लो I में, A और B के बीच में जो भी C है, A और B के बीच में जो C है, it can be any real number between A and B, then that should also belong to I. इसका मतलब ऐसा है कि when you are talking about the interval, when you are talking about the interval, समझ लो A ये है, ये सेट है, समझो मेरा ये एक सेट है. तो ये इंटरवल कब होगा ये सेट? जब सब पॉइंट्स आ जाएंगे बीच वाले. कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो आप, ए बी, इसके बीच वाले सब पॉइंट्स आने चाहिए. मतलब ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. समझो मैं आपको बताऊं कि ये इसको ड्रॉ करना है मुझे, या इसको हाईलाइट करना है. समझ लो मैं अभी कलर चेंज करती हूँ, ब्लू लेती हूँ. तो ये आई है मेरा सेट, ये सेट आई है. इसको अगर मुझे हाईलाइट करना है ना, तो मैं इधर से चालू करूंगी ना, समझो, तो विदाउट लिफ्टिंग माई पेन मैं यहां तक आ रही हूँ, देन इट इज एन इंटरवल. हाँ, अभी मैं बताती हूँ कि इंटरवल नहीं है ऐसा सेट कौन सा होगा. तो ये देखते हैं, रेड में जो है ना, वो इंटरवल नहीं है. अभी इसमें मैं क्या ले रही हूँ, देखो, हाँ, मेरा सेट क्या है अभी देखो, इधर ये पॉइंट है, फिर ये पॉइंट है, फिर ये पॉइंट है, फिर इधर इधर सब है, फिर इधर है, फिर इधर है. जंपिंग हो रहा है ना. नाउ अगर मैं ये दोनों पॉइंट्स लेती हूँ, दिख रहे हैं आपको ये दो पॉइंट्स, फर्स्ट टू. सो the points which are lying in between those 2 points, are they belonging to the set? मतलब इन दो पॉइंट्स के बीच वाला पार्ट भी सेट के अंदर है क्या? नहीं है, क्योंकि यहां से इधर जंप किया है. तो ये जो सेट है इधर रेड में दिखाया हुआ सेट, इज इट एन इंटरवल? नो, देन इट इज नॉट एन इंटरवल. यू कैन सी क्लियरली जंपिंग हो रहा है. इंटरवल क्या होता है कि कंटिन्यूअस, आप पेन को उठा नहीं रहे हो. ओके, देन इट इज एन इंटरवल. आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? Okay, so in words, you can define it in the way written over here. ठीक है. अभी हम एक बहुत important definition देखेंगे, that is called as neighborhood. Yeah. ये है मेरा word neighborhood. अभी okay. Now to explain you the concept of neighborhood,
नेबरहुड में आपको नेबर वर्ड दिख रहा है, नेबर, एंड एवरीबडी नोज द मीनिंग ऑफ नेबर। अभी आप समझ लो, मैं इधर एक छोटा डायग्राम निकालती हूँ कि घर है इधर, ऐसे घर है, एक के बाजू में एक। ओके, नाउ सपोज यू आर रिसाइडिंग इन दिस पर्टिकुलर हाउस, आप इधर रह रहे, देन आई विल से हु आर योर नेबर्स, सपोज आई आस्क यू, तो फिर ये एक हो गया आपका इमीडिएट नेक्स्ट नेबर, लेफ्ट हैंड साइड में अगर लेते हैं तो, और इधर हो गया एक दूसरे साइड में इमीडिएट नेक्स्ट नेबर। सो यू आर कंसिडरिंग इमीडिएट नेबर्स, तो ये दोनों हो गए आपके नेबर्स। सो दिस इज योर नेबरहुड। व्हाट यू आर कंसिडरिंग, जस्ट वन हाउस ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, अभी मैंने बोला कि नो, कंसिडर टू हाउसेस। अभी ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो है ये वाला, वो भी नेबर ही है ना आपका, इमीडिएट नहीं है लेकिन नेक्स्ट टू नेक्स्ट डोर तो है ही ना। सो नाउ आई एम आस्किंग यू कि कंसिडर द टू हाउसेस ऑन बोथ द साइड्स। तो आप इसको भी ले रहे हो और इसको भी ले रहे हो, दो घर ले रहे हो, 2 हाउसेस। अभी इस तरफ राइट लेफ्ट जो भी है आप देख रहे हो, एक तरफ अगर 2 हाउसेस ले लिए तो दूसरी तरफ भी रूल क्या है हमारा, उतने ही हाउसेस लेने हैं। तो इस घर को भी लिया और इस घर को भी लिया, बराबर। तो इधर भी मेरे हो गए 2 हाउसेस। तो यू आर एट द सेंटर, you are at the center, and then you are taking two houses on both the sides. तो आपका नेबरहुड क्या हो गया, यहां से लेके यहां तक। इफ यू कंसिडर टू हाउसेस, इफ आई चेंज दिस नंबर 2 to 3, तो और एक घर आ जाएगा दोनों तरफ, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, करेक्ट। सो नाउ यू कैन सी द हाउसेस इन वन लाइन, उसको हम रिप्लेस करते हैं रियल नंबर लाइन से, करेक्ट। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट हाउसेस, ये जो बीच वाला घर है उसके और नेक्स्ट घर के बीच में थोड़ा डिफरेंस या डिस्टेंस रहे हो सकता है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट द रियल नंबर लाइन, यू नो दैट बहुत चिपक चिपक के है सब पॉइंट्स, देयर इज नो गैप इन बिटवीन, वो कंटिन्यूअस है, एक रियल नंबर के बाद इमीडिएट नेक्स्ट दूसरा रियल नंबर भी है, और उन दोनों के बीच में देयर आर अगेन इनफाइनेटली मेनी रियल नंबर्स। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक स्ट्रेट लाइन में। ओके, थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट डिफाइन करने के लिए थोड़ा ऊपर ले, हाँ। तो अभी इस नंबर में ये है अपना सेंटर, तो इसको ले लो, मैं P नाम देती हूँ। इज इट विजिबल प्रॉपरली? बहुत खिचड़ी नहीं ना बनी है इधर, मैं पेन चेंज करती हूँ अभी। ओके, तो ये है मेरा सेंटर, ये है P। नाउ व्हाट आई एम सेइंग कि राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ जाना है। इधर हाउसेस थे, इधर क्या होगा अभी, कुछ डिस्टेंस ना, व्हेन यू आर गोइंग ऑन बोथ द साइड्स वो कुछ डिस्टेंस रहेगा। तो समझ लो 1 यूनिट में जा रही हूँ इस तरफ, तो इस तरफ 1 यूनिट गई तो इधर आ गई, दूसरी तरफ भी 1 यूनिट गई तो इधर आ गई। तो ये जो है ये हो गए मेरे नेबर्स। नाउ द रूल इज, जो लास्ट पॉइंट है ना, एंड पॉइंट, उसको नहीं कंसिडर करना है। एंड पॉइंट नहीं कंसिडर करना है, दैट मीन्स व्हाट, साइन क्या रहेगा, स्ट्रिक्टली लेस देन रहेगा। यू गॉट माय पॉइंट। सो देयर आर 2 थिंग्स हियर, एक तो है मेरा सेंटर जो P है विच इज अ रियल नंबर, एंड द अदर थिंग इज कि कितना डिस्टेंस में दोनों तरफ जा रही हूँ। एंड अगेन रिमेंबर द रूल इज, जितना लेफ्ट साइड जाओगे ना उतना ही राइट साइड जाना है, वो डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लेफ्ट में ज्यादा दूर तक गए और राइट में थोड़ा कम डिस्टेंस गए, ऐसा नहीं, द डिस्टेंस इज सेम ऑन बोथ द साइड्स। ओके, नाउ तो P इज समथिंग विच इज अ रियल नंबर, और लेफ्ट और राइट कितना डिस्टेंस में जा रही हूँ, वो डिस्टेंस है तो वो नॉन निगेटिव होना चाहिए, बराबर ना। 0 डिस्टेंस है मतलब क्या, आई एम सिटिंग देयर इटसेल्फ, मैं हिल नहीं रही हूँ, बराबर। और निगेटिव डिस्टेंस तो होता ही नहीं है, तो इसलिए वो जो डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। यू अंडरस्टूड दीज 2 थिंग्स। नाउ यू कैन ऑल्सो लुक एट इट इन दिस वे कि इसमें मैं, ये जो नेबरहुड है इसमें मैं कौन से पॉइंट्स ले रही हूँ,
वो सब आई एम टेकिंग ऑल दोज रियल नंबर्स जिनका p के साथ जो डिस्टेंस है दे आर एट द डिस्टेंस, ये कितना है मेरा समझ लो, ये है एप्सिलॉन. सो द पॉइंट्स whose distance from p is less than एप्सिलॉन. एप्सिलॉन तक नहीं जाना है, उससे कम डिस्टेंस पे जितने पॉइंट्स है वो सब आएंगे. तो वो इस तरफ के भी आएंगे और दूसरी तरफ के भी आएंगे. ओके, तो डिस्टेंस फ्रॉम p इज लेस देन एप्सिलॉन. दीज आर ऑल पॉइंट्स whose distance from p is less than एप्सिलॉन. अभी डिस्टेंस फ्रॉम p क्या होता है, x है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम p कितना होगा, मॉड ऑफ x माइनस p. सुबह देखा ना हमने प्रैक्टिकल में, मॉड ऑफ x माइनस p इज डिस्टेंस बिटवीन x एंड p. और ये क्या चाहिए मुझे, दिस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन. मेरा डिस्टेंस मैंने फिक्स किया है एप्सिलॉन. करेक्ट. अभी इसको हम लिखते हैं डेफिनेशन के टर्म्स में. ओके, सो आई एम हैविंग p and epsilon as my real numbers. P can be negative, P can be 0, it can be anything, but epsilon has to be greater than 0. And the epsilon neighborhood of P, बहुत बड़ा नाम है ये नेबरहुड, इसलिए हम छोटा करके उसको हमेशा कैसे लिखेंगे, इट विल बी रिटन एज एप्सिलॉन डैश NPD, ये शॉर्ट फॉर्म है. ओके, सो हाउ डू वी राइट एप्सिलॉन डैश NBD of P, and we say it as epsilon neighborhood of P. दोनों आने चाहिए, एप्सिलॉन और P दोनों आने चाहिए. So I read it again. The epsilon neighborhood of P is a set which is denoted by, ये है नोटेशन, कैसे लिखते हैं, कैपिटल N लिखना है और उसको लेफ्ट में एक छोटा सा लाइन लगाना है ऐसे. जैसे R कैसे लिखते हैं, देखो इधर R ऐसा नहीं होता है ना, इसको एक लाइन लगाते हैं ना. इन द सेम मैनर N लिखने का और इधर लेफ्ट में एक लाइन लगाने का. अंडरस्टूड. सो NP comma epsilon, that is the notation for epsilon neighborhood of P, and it is defined by, ये है मेरा definition. क्या होता है ये, it is a set, of course it is a set, and it is a subset of R. So all those real numbers such that mod of x minus p is less than epsilon. This is the main definition. Mod of x minus p is less than epsilon. Let me remove the unwanted thing from here. Okay. So what is it? All those real numbers such that mod of x minus p is less than epsilon. अभी ये hidden चीजें है कि mod of x minus p means distance between x and p. That means all the real numbers whose distance from p is from p, huh? P से उसका distance is less than epsilon. Now here this p, जैसे यहाँ आप खड़े थे इधर इस डायग्राम में, this p is referred as the center of the neighborhood and epsilon is referred as the radius of the neighborhood. रेडियस क्यों आ गया वर्ड, नॉर्मली रेडियस किस चीज का होता है, सर्कल का होता है, बराबर. अभी सर्कल अगर मैं निकालती हूँ ना, देखो ये समझो मैंने सर्कल निकाला, देन आई एम गोइंग आउटसाइड द रियल नंबर लाइन, बराबर ना. सो इट बिकम्स 2 dimensional ज्योमेट्री. लेकिन हमारा तो एक डायमेंशन है, मैंने क्या बोला, रियल नंबर लाइन के बाहर नहीं जाएंगे हम. तो वो कॉन्सेप्ट सर्कल जैसा ही है. देखो ये जो डायग्राम है ये 2 dimension में नेबरहुड हो जाएगा, लेकिन बिकॉज वी आर इन द ऑन द नंबर लाइन, पेन चेंज नहीं होता है फटाफट, चलो ब्लैक यूज करते. सो वी आर ऑन द नंबर लाइन. ये क्या हो गया मेरा, p इधर है और इधर थोड़ा डिस्टेंस, इधर थोड़ा डिस्टेंस. सो इंस्टेड ऑफ सर्कल व्हाट आई हैव इज जस्ट थोड़ा डिस्टेंस दूसरी एक तरफ, थोड़ा डिस्टेंस दूसरी तरफ. Can you see that it is an interval? I'm about to say that
लेकिन आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मैं, चलो अच्छा सा डायग्राम निकालते हैं. All these concepts are clear ना? Let me rub out everything now. And I will draw a very nice diagram of neighborhood. So I have the real number line. This is my real number P. And now epsilon matlab all the real numbers whose distance from P is less than epsilon. So ये इधर epsilon distance और ये इधर epsilon distance. Okay? अभी मुझे बताओ, अगर मैं राइट साइड में एप्सिलॉन डिस्टेंस गई तो कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज दिस पॉइंट? ये बीच में P है, तो ये पॉइंट क्या रहेगा? ये कौन सा रियल नंबर रहेगा? कैन एनीबॉडी टेल मी दिस? ओके, समझो मैं हूं इधर 2 पे और मैं 1 यूनिट राइट साइड गई, 1 यूनिट राइट साइड, तो मैं कौन से पॉइंट पे जाती हूँ? आर यू ऑल देयर? Yes, ma'am. या सो प्लीज आंसर. 2 पे खड़े हो आप और 1 यूनिट राइट साइड जा रहे हो, तो किधर जाओगे आप? किधर पहुंचोगे? ये 1 यूनिट है. नहीं समझा क्वेश्चन? फिर से No, ma'am. निकालती हूँ. ये है मेरी नंबर लाइन, ठीक है? ये है आपका पोजीशन, इधर खड़े हो और मैंने कहा कि 1 यूनिट राइट साइड जाओ, 1 यूनिट राइट साइड जाओ, तो आप किधर पहुंचोगे? ये कौन सा पॉइंट रहेगा? 3 पे. 3 पे पाओगे, ऑफ कोर्स. अभी रूल क्या है फॉर नेबरहुड? जितना आप राइट में गए उतना लेफ्ट में जाओ. तो लेफ्ट में भी कितना जाना है आपको? नहीं रखी कौन से, लेफ्ट में भी कितना जाना है? 1 यूनिट ही जाना है. तो कहाँ पहुंचे? 1 पे. 1 पे. तो क्या किया इधर? राइट में गए तो 2 + 1 किया, लेफ्ट में गए तो 2 - 1 किया. करेक्ट? नाउ टेल मी व्हाट इज दिस पॉइंट? पी पे हो और एप्सिलॉन डिस्टेंस राइट साइड जा रहे हो, तो कहाँ पहुंच गए? वेयर आर अदर्स? आंसर. आप पी पे खड़े हो और इधर राइट साइड में चल चल के एप्सिलॉन डिस्टेंस जा रहे हो, तो कौन से पॉइंट पे पहुंच गए? 2 से 3 कैसे पहुंच गए? वैसे P+1. हाँ, लेकिन इधर 1 नहीं है. सी इन दिस डायग्राम इट वाज 1. नाउ आई एम रिप्लेसिंग द नंबर्स बाय सम नोटेशंस. तो एप्सिलॉन डिस्टेंस है तो P + एप्सिलॉन आएगा, और लेफ्ट में जाते हो तो माइनस होता है, यानी ये पॉइंट कौन सा है मेरा? दिस इज P - एप्सिलॉन. अंडरस्टूड दिस? दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी? और क्या अभी आप Yes, लोगों को ma'am. ये नेबरहुड दिख रहा है? देखो मैं यहाँ से जाके ये पूरा इधर तक आ सकती हूँ और यहाँ P से स्टार्ट करके ये पूरा वहां तक, लेफ्ट में वहां तक जा सकती हूँ. तो इजंट इट एन इंटरवल P - एप्सिलॉन टू P + एप्सिलॉन? ओपन इंटरवल दिख रहा है डायग्राम में आपको, ओपन इंटरवल जो इस पॉइंट से चालू होता है और पूरा यहाँ तक P + एप्सिलॉन पे आता है. मैं कलर चेंज करके वापस दिखाती हूँ. देखो यहाँ ये छोड़ दो आप पॉइंट, यहां से चालू करके कहां तक आ रहे हो? यहाँ तक आ रहे हो. लेकिन P - एप्सिलॉन एंड P + एप्सिलॉन आर नॉट कंसिडर्ड. So isn't it an open interval? We have just now seen the diagrams of intervals ना. यहाँ से चालू करके यहाँ तक, यानी P - एप्सिलॉन से चालू करके P + एप्सिलॉन तक गए, तो ये क्या हो गया? फ्रॉम द डायग्राम कैन यू सी दैट इट इज एन ओपन इंटरवल P - एप्सिलॉन टू P + एप्सिलॉन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डायग्राम जो ब्लैक एंड रेड में है वो. ओके, सो interesting to know that neighborhood, if you start with, it is ultimately an interval. करेक्ट? अभी हम उल्टा भी देखेंगे कि अगर इंटरवल कोई दिया है, कैन वी राइट इट एज अ नेबरहुड?
we are going to study that, correct? Okay, अभी मैं नीचे आती हूँ और let me tell you this remark. जो अभी मैंने डायग्राम में बताया ना, that same thing is written in terms of remark. Now see, this is the fact which we have used in the morning, that if mod of x minus p is less than r, then you have p minus r less than x less than p plus r and vice versa. Converse भी true है, इसलिए ये if and only if, correct? अभी ये चीज कहाँ दिख रही है आपको? ये है यहाँ पे. So what you have is, ये मेरा neighborhood का notation है. How do you read this? It is an, कैसे देखो पढ़ते, लिखते समय n से स्टार्ट करते, लेकिन पढ़ते समय epsilon neighborhood of p. How do you read it? Epsilon neighborhood of p. By definition, it is all those real numbers such that mod of x minus p is less than epsilon. But mod of x minus p less than epsilon means x lies between p minus epsilon and p plus epsilon, because of this particular remark. And this is nothing else but an open interval p minus epsilon to p plus epsilon. ये क्या है मेरा? This is open interval p minus epsilon to p plus epsilon. So neighborhood से start किया, मुझे open interval मिलता है. Now we will see some examples where we will start with an open interval and we will go to the neighborhood. Okay. Now, as I told you, all the notes will be given to you. तो ये थोड़ा unwanted मैं निकाल देती हूँ. Okay. Now we will see the examples. Neighborhood is referred by आजू बाजू. मैं हमेशा इसको आजू बाजू बोलती हूँ. तुमचे शेजारी असतात ना, आजूबाजूचे शेजारचे, तसंच नेबरहुड आहे. एक तुमचा सेंटर असतो, एक रियल नंबर असतो आणि त्याच्या आजूबाजूचे रियल नंबर्स घ्यायचे. किती आजूबाजूचे घ्यायचे ते कोण डिसाइड करतं? हु डिसाइड्स की कितना आजूबाजू जाना है मुझे? एप्सिलॉन, मतलब रेडियस डिसाइड्स इट. ओके, सो देयर इज अ center and there is a radius. Okay, now look at the example exercise. If you refer the अभया कौन है वो? अभया चित्रे मैडम्स टेक्स्ट बुक, तो उस हिसाब से दिस एक्सरसाइज इज 2.4.8. द क्वेश्चन इज फाइंड द फॉलोइंग सेट्स. ओके, हाउ डू यू रीड द फर्स्ट सेट? फर्स्ट क्वेश्चन कैसे पढ़ोगे? इसको कैसे पढ़ोगे? लेट मी आस्क. अरे मेंबर्स कम क्यों हो गए? 10 थे पहले, अभी 8 ही रह गए. या सुयश, कैन यू आंसर दिस? सुयश पवार, हे कसं वाचणार? हे जे अंडरलाइन केलेलं ते कसं वाचायचं? बरं, आय विल हेल्प यू आउट हियर. समझो मैंने लिखा है एन पी कॉमा एप्सिलॉन. सुयश पवार इज देयर? काहीतरी अनम्यूट करून आन्सर दे. चॅट बॉक्स मध्ये काय आहे? का रे तुझं माईक नाही चालत सुयश? I want you to read it na. Okay, how do you read this? This is epsilon neighborhood of P. Everybody understood how to read it? Now I want somebody to read this. इसको पढ़ो. Yes, I don't have time, so I am only reading it. बाकीचे लोक नक्की neighborhood of 2. इज नाही म्हणायचं. वन नेबरहुड. Epsilon neighborhood. हो, पण आता इथे ऍप्सिलॉनच्या जागी कोण आहे? वन आहे ना, तर वन
Neighborhood of 2. ऑफ 2 म्हणजे 2 च्या आजूबाजूचे घेताय तुम्ही. किती डिस्टन्स पर? 1 डिस्टन्स पर. करेक्ट. अच्छा, अजून एक गोष्ट लक्षात ठेवा, दिस इज नथिंग एल्स बट an interval p minus epsilon p plus epsilon. हे खूप महत्वाचं आहे. दिसतंय ना सगळ्यांना? मी वरच्या कोपऱ्यात लिहिलेलं आहे. Yes, ma'am. So now putting the values straight away here, what do I get here? It is 2 minus 1 comma 2 plus 1 म्हणजे 1 comma 3 interval. आता हे नोटेशन काय आहे? नेबरहूडचं नोटेशन आहे हे, which is same as the interval. हे काय आहे माझं आता? This is open interval 1 2 3. ओके. आणि ह्याची डायग्राम कशी दिसणार? डायग्राम पण काढूया आपण. ओके, सो माझा 2 कुठे आहे? इथे आहे 2. करेक्ट. त्याच्या 1 डिस्टन्स ऑन द राईट हँड साइड, म्हणजे मी इथे 1 डिस्टन्स म्हणजे इथे 3 ला गेले आणि 1 डिस्टन्स ऑन द लेफ्ट हँड साइड म्हणजे इथे आले मी 1 ला. म्हणजे इथून सुरू करून इथपर्यंत. दिस इज माय 1 नेबरहूड ऑफ 2. आणि आता इफ आय लुक ॲट इट ॲज अन इंटरवल, तर तुम्ही काय म्हणणार? कुठून सुरू केलं? 1 ने सुरू केलं आणि 3 पर्यंत गेले, म्हणजेच ओपन इंटरवल 1 2 3. अंडरस्टूड दिस? नाउ ट्राय टू राईट, दो इट इज नॉट फेअर नोट्स, तुम्हाला नोट्स तर नंतर लिहायच्यात. At least scribble something and give the answer of the second question. और डायग्राम निकालने की भी कोशिश करो सब लोग. I hope you are sitting with your notebooks and pens. ये खाना खाना खाते खाते नहीं ना देख रहे हो मूवी जैसा? No, ma'am. So write it, draw the line and write it. So you read it as, pen change करो. You read it as 0.5 neighborhood of 1.5, मतलब 1.5 के आजू बाजू. तो by the above definition it is 1.5 में से 0.5 माइनस करो, वो लेफ्ट हैंड साइड का पॉइंट रहेगा, और 1.5 में 0.5 ऐड करो, वो राइट हैंड साइड का पॉइंट रहेगा, विच इज गोइंग टू बी, यहाँ आएगा 1 और यहाँ क्या आएगा 2. तो दिस इज ओपन इंटरवल 1 to 2. ये है 0.5 neighborhood of 1.5 and this is open interval 1 to 2. और डायग्राम देखो कैसा आएगा. समझो इधर है मेरा 1.5, तो 0.5 में इधर जा रही हूँ, यानी मैं आऊंगी 2 पे, और 0.5 लेफ्ट में जा रही हूँ, मतलब मैं आऊंगी 1 पे. तो ये इंटरवल आ गया मेरा 1 to 2. So there are 2 ways of looking at this particular diagram. आप अगर सेंटर पे खड़े हो, then you look at it as an as a neighborhood. If you are at this center, then you are looking at it as neighborhood, कि मैं यहाँ पे हूँ और मेरे आजू बाजू 2 तक जा सकते हो या 1 तक जा सकते हो. लेकिन अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो 1 से, तो 1 से स्टार्ट करके 2 तक जा सकते हो ऐसे. Then you are looking at it as an open interval from 1 to 2 या simply open interval 1 to 2. ये जो from word है ना, ये normally we don't say, सिर्फ open interval 1 to 2 ऐसा कहते हैं नॉर्मल. from word omit करते हैं, understood होता है. समझ में आया? तो neighborhood, if the neighborhood is given, you can write it as an open interval ना, कभी भी closed वगैरह नहीं आएगा. It will be definitely an open interval. अभी ये लास्ट एक्सरसाइज हम करते हैं एंड देन वी विल स्टॉप. फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड एप्सिलॉन. अभी ये गेम उल्टा है, मैं ओपन इंटरवल दे रही हूँ और आपको उसका सेंटर और रेडियस निकालना है. तो देखो
ओपन इंटरवल क्या है मेरा 1 to 5, तो ये 1 यानी यहां से यहां तक है, करेक्ट। 1 to 5 मेरा ओपन इंटरवल है। नाउ यू वांट टू फाइंड आउट द सेंटर एंड रेडियस। तो डायग्राम से कौन बताएगा कि इसका सेंटर कौन सा रहेगा और रेडियस क्या रहेगा? बहुत सिंपल एक क्वेश्चन है। P is center and epsilon is radius. So you want to find the values of P and epsilon. तो डायग्राम से बहुत इजीली बता सकते हैं। इंटरवल कहेंगे तो 1 to 5 हो गया। But if you want to look at it as a neighborhood, तो सेंटर कौन और बताओ रोहन, tell me who will be the center. So I want P 3. और epsilon. 3 ma'am. यहाँ पे आप खड़े रहो। Yes, so P is 3 और कितना डिस्टेंस जा रहे हो दोनों तरफ? 2. How many units? 2. 2 units. So P is 3 and epsilon is 2 from the diagram, correct? अभी ये तो बहुत और भी इजी क्वेश्चन है। -1 और 1 है, तो P क्या आएगा? विदाउट डायग्राम ट्राई टू टेल मी। 0. 0. Center is 0 and how many units you are going? 1 unit. Understood this? Okay? अभी एक होमवर्क देती हूं मैं कि नोट्स नहीं लिखे ना तो भी चलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन लिख लो आप। N P comma epsilon is A comma B. Now your answers will be in terms of A and B. देखो ऐसे लिखो क्वेश्चन। एक मिनट इसको थोड़ा रीडू करती हूँ। So this is homework question. If n मतलब epsilon neighborhood of P is A comma B, then find P and epsilon. Obviously in terms of A and B. मतलब आपका आंसर A और B के टर्म्स में आएगा। This is the homework. Okay. So with this, let us stop now. And you are having the mentoring session at 1:30. So you need some break. No, in ma'am. 3 between? o'clock. Oh, yeah. Sorry. I got confused. First, let me stop the recording.